Hello students, welcome to A Square classes. My name is Shivani Parwar and I am back with yet another lecture on reproduction in organisms. In previous lectures, we have seen that we had completed lifespan, difference between sexual reproduction and asexual reproduction and asexual reproduction in detail. The only topic left in this chapter is sexual reproduction. So today we are going to start with sexual reproduction. तो पिछले बार जब हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के डिफरेंसेस देखे थे तो हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट फ्यूजन ऑफ gametes take place and these gametes are either formed by same individual or different individuals of opposite sex or different individuals of opposite sex. And if we say that the individual is same, then what should we know? That the individual should be bisexual in condition. Okay, and also whenever the offspring will be formed, that offspring will not be identical to the original parents. So not identical. Offsprings are not identical to the parents. So these are the main three characteristics of sexual reproduction. Now, whenever we talk about sexual reproduction, we know that sexual reproduction only takes place in reproductive phase. As we saw earlier that this lifespan has 5 phases in it. And what are those phases? Let us revise again. Lifespan has phases. Right? First phase is birth. Second phase is juvenile phase. Third phase is reproductive phase. Phase is aging or senescence. Aging or senescence. Fifth phase is death, ultimately. Right? So whenever we talk about this reproductive phase, which phase comes before this reproductive phase? It is juvenile phase. And which phase comes after reproductive phase? It is aging or senescence. Right? Now, what is this juvenile phase? है ना, क्योंकि reproductive phase के पहले juvenile phase आ रहा है, and what is birth we know that. तो juvenile phase क्या होता है ये पता होना चाहिए. So this is the period of growth. So juvenile phase is the period of growth. वो growth का period जिसमें sexual maturity को attain करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, that period of growth is juvenile phase. Then comes the reproductive phase, right? And after reproductive phase there comes aging. तो आप human में भी example ले लेते हैं. Birth हो रहा है किसी भी child का, then it is growing, है ना. ग्रो करने के बाद अब वो कौन से स्टेज में आ गया है? एडल्ट स्टेज में. एडल्ट स्टेज के बाद अब धीरे धीरे उसका जो एडल्टहुड है वो खत्म होगा और वो किस पर्टिकुलर फेज में एंटर करने लगेगा? एजिंग वाले फेज में. और एजिंग के बाद कौन सा फेज है? अल्टीमेटली डेथ. सो दीज आर द फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन. और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या मेनली पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, so let's talk about reproductive phase in detail. Reproductive phases are different in different organisms, that is they are of different period, है ना. तो उनके period में, इस reproductive period में जो time है वो differ करता है. reproductive period में जो time होगा वो अलग अलग organisms का differ करेगा, है ना. अगर हम बात करें plants की, if we talk about plants, so there are many types of plants which complete their life cycle in different durations. So let first be annual plants. Annual plants क्या होते हैं सभी को पता है. What are annual plants? The plants which complete their life cycle in one complete year. Okay, उनके पास सिर्फ एक ही year होता है सारे फेजेस को करने के लिए, यानी कि उनका बर्थ भी तभी होगा, उनका फ्लावरिंग भी उसी एक साल में होगा, जो फ्रूट देंगे वो उसी एक साल में देंगे और उनकी डेथ भी उसी साल में हो जाएगी. सो द प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 year is an annual plant. Okay, what are the examples of annual plant? Rice, wheat,
maize, etc. Okay, now there are some plants which complete their life cycle in 2 years, and those kind of plants are known as biennial plants. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पा रहे हैं, उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? बाइनियल प्लांट्स. तो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years. ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर कैरेट एंड पार्सले. ओके, ठीक है. अब देखो थर्ड कैटेगरी कौन सी है? ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो 2 साल से ज्यादा समय लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में. जैसे आप देखते हो एप्पल का ट्री, मैंगो का ट्री, गुआवा का ट्री, वो एक बार जनरेट हो गए, एक बार उनका फ्लावरिंग शुरू हो गया तो काफी समय तक जीते हैं और अपने फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं ना. इसका मतलब ये है दैट दीज आर पेरेनियल प्लांट्स व्हिच कंप्लीट their life cycle in more than 2 years. Examples are guava, apple. Okay, अब देखो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पे फ्लावर करते हैं, यानी कि बहुत समय लेकर के वो फ्लावर करेंगे. तो क्या है, 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत समय लेके फ्लावर करते हैं, और वो कौन से प्लांट्स हैं आपको याद रखना है, बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई एम राइटिंग हियर प्लांट. जो बैम्बू प्लांट है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में 50 to 100 ईयर्स के लाइफ साइकिल में सिर्फ इट फ्लावर्स once in 50 to 100 years. Okay, so क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्रूट प्रोवाइड करेगा, एक बार फ्लावर प्रोवाइड करेगा तभी तो फ्रूट्स बनेंगे, राइट? तो एक बार फ्लावर हो रहा है पूरे 50 to 100 ईयर्स में, इसलिए हम इसे कैसा किस तरीके का प्लांट बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मोनोकार्पिक. हालांकि इसका लाइफ साइकिल जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, देख रहे हो आप 50 to 100 ईयर्स का लाइफ साइकिल है, पर बट दे विल फ्लावर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्लांट विल बी मोनोकार्पिक प्लांट. ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रोबिलेंथस. हिंदी में बोलते हैं नीला कुरंजी. इट इज फेमस फॉर इट्स नेम नीला कुरंजी, और इसके काफी सारे मेडिसिनल यूजेस हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के, इसलिए भी ये ज्यादा फेमस है. एंड वेयर इट इज फाउंड इन साउथ इंडिया रीजन. इट इज फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक. Special about this particular plant that it flowers once in 12 years. So it flowers 12 years. तो ये 12 साल में एक बार फ्लावर दे रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो मोनोकार्पिक. समझ में आ रहा है? ये भी ऑटोमेटिकली मोनोकार्पिक के कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है. सो दीज 2 प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. बैम्बू फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम विच इज 50 to 100 years, and Strobilanthes kuntiana, famously known as Neela Kuranji in Hindi, has many medicinal purposes, and it is found in hilly areas of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. And it only flowers once in 12 years. और जो फ्लावर होता है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, और एक बार में बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मास प्रोडक्शन होता है. तो जब ये ब्लूम करता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है. कभी अगर आपको ऐसे चांस मिला साउथ इंडिया विजिट करने का, और अगर ऐसा टाइम हो कि 12 साल पूरे हो रहे हो, तो प्लीज़ वो गार्डन्स को, वो एरियाज को ज़रूर विजिट करना. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट प्लांट्स. मतलब हमने ऐसे प्लांट्स के बारे में बात की जिनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है, उनका टाइम डिफर कर रहा है, अलग अलग टाइम पे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो केसेस है, सिमिलर केसेस हम प्लांट्स में, मतलब ये सारे केसेस हमने प्लांट्स में देखे, बट सिमिलर केसेस हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं. तो हम अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ, मतलब टाइम डिफरेंस, रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो टाइम डिफरेंस है उससे रिलेटेड हम देखेंगे एनिमल्स की कंडीशन. क्या केस होता है एनिमल्स में भी, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है
वो डिफर कर सकता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल हो सकता है। अगर हम बात करें प्लासेंटल एनिमल्स की, किसकी बात करेंगे? हायर एनिमल्स। और कैसे एनिमल्स है वो? प्लासेंटल एनिमल्स है। ओके, तो अगर वो प्लासेंटल एनिमल्स प्राइमेट है तो क्या होने वाला है, ये जो प्लासेंटल एनिमल्स होते हैं इनकी जो फीमेल्स होती हैं, दोज फीमेल्स अंडरगो डिफरेंट साइक्लिक चेंजेस इन देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ठीक है, तो जो भी फीमेल्स होंगी प्लासेंटल ओरिजिन की, उनमें साइक्लिक चेंजेस हमें नजर आते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। और वो जो साइक्लिक चेंजेस होंगे हम अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से उनको अलग अलग नाम देंगे। इसलिए हमने क्या बोला कि प्राइमेट अगर है, प्राइमेट्स का एग्जाम्पल क्या है? मंकी, humans, we are primates, ठीक है, and who are non primates, for example cows, goats, etc. ठीक है, तो अगर हम primates की बात करें तो इस तरीके के किस तरीके के चेंजेस हमें प्राइमेट्स में नजर आएंगे? हमें जो नजर आएंगे चेंजेस ओनली इन फीमेल्स, वो होंगे मेंस्ट्रुअल चेंजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो प्राइमेट की फीमेल होंगी उनमें आपको सर्टेन पीरियड के गैप में मेंस्ट्रुअल साइकिल नजर आएगी। ओके, और नॉन प्राइमेट्स में कैसी साइकिल नजर आएगी? ईस्ट्रस साइकिल नजर आएगी। ओके, तो हमने क्या बोला? प्राइमेट्स में फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस नजर आएंगे वो साइकिल के फॉर्म में नजर आएंगे और उस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे? चेंजेस को हम estrous cycle बोलेंगे। Therefore, we should know what is the difference between these two, menstrual cycle and estrous cycle. Okay. Okay. I'm creating a table. Cycle. This is estrous cycle. First is menstrual cycle में क्या होता है सभी को पता है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज से लेके 30 डेज का होता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ओके, कितना होता है ड्यूरेशन? 28 टू 30 डेज का ड्यूरेशन होता है। और ईस्ट्रस साइकिल जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, 24 आवर्स। ओके, नाउ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफी सारे फेजेस होंगे। कौन कौन से फेजेस होंगे? प्रोलिफरेटिव फेज, ovulatory phase and luteal phase, ये फेजेस होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बट यहाँ पर कोई फेज होगा क्या? यहाँ पे जनरली एज सच कोई फेज नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है। एंड जितना भी ड्यूरेशन है भले ही शॉर्ट क्यों ना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद वापस से पैसिव एनिस्ट्रस साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 3। अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? फर्टिलाइजेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार हो जाती है यूट्रस में। यूट्रस कैसा नजर आता है बच्चों? यूट्रस ऐसा शेप का होता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो यूट्रस है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेयर्स है वो काफी थिक हो जाती है। थिक क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको अभी आगे ऑर्गेनिज्म तैयार करना है, तो न्यूट्रिशन तो बराबर मिलना चाहिए ना, सुटेबल एनवायरनमेंट तो मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, दीज लाइनिंग्स आर एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, ये जो वॉल्स है वो डीजेनरेट हो करके ब्लड के फॉर्म में बाहर आने लगेंगी, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंडोमेट्रियम जो होगा वो शेड होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कुछ लास्ट डेज में। पर जब हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो शेड नहीं होता, पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब्ड। था थर्ड पॉइंट। अब एक फोर्थ पॉइंट भी है, यहाँ पर देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट जो है उसकी हम बात करें
तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है किसी भी फीमेल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस ब्लीडिंग वाले पीरियड के दौरान जो होती है फीमेल, वो कॉप्यूलेशन को यानी इंटरकोर्स को अलाउ नहीं करती। तो फीमेल नॉट अलाउ कॉप्यूलेशन इन ब्लीडिंग, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम शेड होकर के बाहर आने लगता है ब्लड के फॉर्म में, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। और ये जो होता है इस टाइम पे जो फीमेल होगी वो कॉप्यूलेशन यानी इंटरकोर्स को अलाउ नहीं करेगी। और कंट्रास्टिंगली हम ईस्ट्रस साइकिल में क्या देखेंगे कि फीमेल जो होगी सिर्फ इसी फेज में कॉप्यूलेशन को अलाउ करेगी। तो फीमेल अलाउज कॉप्यूलेशन ओनली इन दिस पीरियड। समझ में आ रहा है क्या क्या डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में? पॉइंट नंबर 1, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। इसका ड्यूरेशन क्या है? 28 to 30 डेज का ड्यूरेशन है, और इसका ड्यूरेशन है 12 to 24 आवर्स का। अब यहाँ पे बहुत सारे फेजेस आपको देखने मिलेंगे क्योंकि ड्यूरेशन भी तो ज्यादा है। तो प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटल फेज, ये सारे फेजेस आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने मिलेंगे। बट ऐसे कोई भी फेजेस आपको ईस्ट्रस, दिस इज ई, ईस्ट्रस साइकिल में देखने नहीं मिलेंगे। और जैसे ही ईस्ट्रस साइकिल खत्म होगा, पैसिव एंड ईस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाएगी। ओके। थर्ड में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो शेड हो जाती है और ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है लास्ट के दिनों में। और यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो शेड नहीं होता ब्लड के फॉर्म में, ये जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो फीमेल होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो कॉप्यूलेशन को अलाउ नहीं करेगी, पर ओव्यूलेटरी फेज के दौरान वो कॉप्यूलेशन को अलाउ करेगी, ठीक है। सॉरी, ईस्ट्रस पीरियड के दौरान वो कॉप्यूलेशन को अलाउ करेगी। इस तरीके से लास्ट पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि सेक्सुअल अर्ज जो है, सेक्सुअल अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड। सेक्सुअल जो अर्ज है, कॉपुलेशन होने नहीं देते, मतलब सेक्सुअल अर्ज जो है वो इंक्रीज नहीं होता, बट यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज इंक्रीजेस। कॉपुलेशन जो है वो ईस्ट्रस साइकिल में ही फीमेल अलाउ करेगी, इसलिए सेक्सुअल अर्ज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ईस्ट्रस साइकिल। एनिमल्स भी होंगे जो सीजन में ब्रीड करेंगे, यानी कि सीजनली ब्रीड करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कंटिन्यूएशन रिप्रोडक्टिव साइकिल जिनकी रहेगी, यानी कि वो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव साइकिल में कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेंगे। और अगर वो एक्टिव हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और अगर वो सिर्फ सीजनली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं तो हम उनको बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। तो जैसे कुछ रेप्टाइल्स देखते हो आप, कुछ स्नेक्स देखते हो, क्रोकोडाइल्स देखते हो, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीजन वाइज ब्रीड करते हैं, राइट। एंड अगर हम कंट्रास्टिंगली बात करें ह्यूमंस की या फिर हायर एनिमल्स की, ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव पीरियड कंटिन्यूअसली एक्टिव होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ओके, so this was all about animals. The time in the reproduction period, this time duration differs. Okay, and in this case, in the case of animals, there are certain examples जो टाइम, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफर करता है। ओके, अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें बात करनी है ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से सेक्सुअलिटी कैसे होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो सेक्सुअलिटी है वो किससे आएगी? किसी भी प्लांट में इसकी सेक्सुअलिटी जो है, हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएगी। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, मेल हो सकता है और फीमेल हो सकती है। और किसी किसी प्लांट में जो मेल और फीमेल ऑर्गन है वो साथ में होते हैं, यानी कि द प्लांट्स व्हिच bear both male and female reproductive part, such plants are known as
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आपने देखा होगा पहले एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर का? चाइना रोज। एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चाइना रोज? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके, शुड बी। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनमें मेल फ्लावर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग से प्रेजेंट होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग से प्रेजेंट होगी। तो अगर हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स। हम क्यों इनको स्टैमिनेट फ्लावर्स बोलते हैं? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है ना? ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमको पहले से पता है। सो अगर ऐसा कोई फ्लावर है या फिर ऐसा कोई प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उस टाइप के फ्लावर को हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। और अगर ऐसा कोई फ्लावर या प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उस तरीके के फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। इसलिए इस तरीके के फ्लावर को या फिर प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट प्लांट हम ज्यादा करेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। क्या हो सकता है? अगर मैं एक प्लांट बनाऊं, मान लो कोई फ्लावर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, और मान लो यहाँ पर कोई फ्लावर लग रहा है विच इज 2, तो हो सकता है कि ये वाला जो फ्लावर हो इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, और ये वाला फ्लावर जो लग रहा है विच इज 2, इसमें हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, है ना? पर ये भी हो सकता है कि 1 वाले में मेल प्लस फीमेल साथ में हो और 2 वाले में भी मेल प्लस फीमेल साथ में हो। तो जो हमने पहला केस लिया था जिसमें फीमेल और मेल अलग अलग थे, और जब हमने दूसरा केस लिया जिसमें मेल और फीमेल साथ में थे और मेल और फीमेल साथ में थे, दोनों ही केस में इस पूरे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? डायोशियस। तो इस कंडीशन में इस प्लांट को हम बाइसेक्सुअल तो कहेंगे, बाइसेक्सुअल के साथ साथ डायोशियस भी कहेंगे। तो अगर हम बोले कि प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है या फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो डायोशियस भी हो सकता है। और अगर हम बोले कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक ही प्लांट में है और अलग से दूसरे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोशियस प्लांट्स या मोनोशियस फ्लावर्स। ओके, सो मोनोशियस, डायोशियस। समझ में आई दोनों चीजें? तो दिस वाज द केस ऑफ सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। अब अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में दूसरी चीज होगी। किस तरीके की चीज होगी? एनिमल्स की सेक्सुअलिटी की बात करें तो क्या हो सकता है? जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इफ दिस इज एन इंडिविजुअल, तो ये जो इंडिविजुअल है ये मेल भी हो सकता है, यानी कि दिस, है ना? यही पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है, सॉरी, लाइक दिस, है ना? और यही जो इंडिविजुअल है उसमें मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकते हैं और फीमेल के भी साथ में हो सकते हैं। तो इस तरीके के इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। जनरली हम बाइसेक्सुअल जो टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, जो हम एनिमल्स के लिए मोर करेक्ट टर्म यूज करते हैं इस केस में वो होता है हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल आप 11th में पढ़ चुके हो, हर्माफ्रोडाइट एनिमल का एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थवर्म। एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। तो सेक्सुअलिटी एनिमल्स में कैसी होगी? या तो वो मेल इंडिविजुअल हो सकता है, या तो फीमेल इंडिविजुअल हो सकती है, या फिर वो बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल हो सकता है। और बाइसेक्सुअल को एनिमल्स के टर्म्स में अगर हम बोले तो वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल होगा। वी हैव एन एग्जाम्पल अर्थवर्म। ओके, so this was about sexuality of organisms, be it plant or be it animal. Now we will talk about the most important section of this sexual reproduction, which is events in sexual reproduction. Okay,
बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम हमेशा बात करेंगे कि जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अलग अलग जो गैमेट्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं, मतलब उनका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज अ मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेल गैमेट को, और सिमिलरली ये बनाएगी फीमेल गैमेट को, है ना। अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, दीज विल बी फ्यूज्ड। ये फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, फ्यूज होकर के बनाएंगे जाइगोट को, और जाइगोट जब डेवलप होगा तो डेवलपमेंट के बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एम्ब्रियो। प्रोसेस को जिसमें एक पर्टिकुलर मेल इंडिविजुअल जो है या फीमेल इंडिविजुअल जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। दिस इज गैमेटोजेनेसिस, ओके। अब जो अलग अलग गैमेट्स हैं वो साथ में आकर के फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ओके। और अब ये जो जाइगोट है, इट विल अंडरगो मेनी चेंजेस एंड डिवीजन एंड इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, ओके। तो क्लियरली इस पूरे हिस्से में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज डिफरेंट, ओके। ये जो फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड है, दिस इज डिफरेंट, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सो दिस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना। तो ये जो ऊपर वाला फेज होगा जहाँ पे गैमेट्स अभी फर्टिलाइज नहीं हुए हैं जाइगोट को बनाने के लिए, दिस पर्टिकुलर इवेंट इज प्री event, and after fertilization event it will be post. We are here with three main events inside sexual reproduction, which is first pre-fertilization event in which gametes are generated from respective individuals, okay, and gametes are being transferred from male individual to female individual. These two gametes will fuse in fertilization event. After fertilization event, a zygote will form, and this zygote will, after many division, form embryo, ठीक है, and this process will be known as embryogenesis. So these are the three events. अब हम एक एक इवेंट को एक एक करके देखेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है उसका एक शॉर्ट रिकैप एक्चुअली हमने अभी देखा. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी अलग अलग फेजेस होंगे. सबसे पहला फेज होगा जिसमें गैमेट बनना चाहिए. जब तक गैमेट बनेगा नहीं तब तक फ्यूजन नहीं हो सकता. सो पहला फेज कौन सा होगा, गैमेटोजेनेसिस, राइट. अब अगर हम एनिमल्स में बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें गैमेटोजेनेसिस में, तो क्या होता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ना. अगर मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम हायर एनिमल्स या ह्यूमंस का आप केस ले लो तो हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है. क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये पूरा यूनिट ही रिप्रोडक्शन का है, तो यूनिट में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है और उसके बाद एनिमल्स है. तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं एग्जैक्टली कैसे हो रहे हैं उन सारे चैप्टर्स में आप डिटेल में देखेंगे. ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर. इसमें आपको सिर्फ कुछ टर्म्स याद रखने हैं, ओके. सो अगर मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है हायर एनिमल्स की बात की जाए तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, और अगर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं oogenesis, ओके. नाउ इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल गैमेट जनरेट होंगे. अगर मेल गैमेट जनरेट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जब फीमेल गैमेट जनरेट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ओके. हो जाने के बाद क्या होने वाला है, जनरेट तो हो गया गैमेटोजेनेसिस में, बट कैसे,
कैसे जनरेट हुआ होगा, अब हमें वो देखना है, उसके बाद हम देखेंगे गैमेट का ट्रांसफर कैसे हुआ। सो सेल डिवीजन फॉर कैसे बना, कौन किस टाइप का डिवीजन हुआ, ये तो पता होना बहुत जरूरी है। ओके तो जब किस तरीके का डिवीजन होगा गैमेट के फॉर्मेशन में, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है क्लास 11 में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक माइटोसिस इन डिटेल एंड मियोसिस इन डिटेल। तो आपको पता है कि किसी भी डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड के कंडीशन को बनने के लिए एक ही सेल डिवीजन है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ओके अब मियोसिस है मतलब रिडक्शनल डिवीजन है, तब तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस होकर 2n से n पे आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, मियोसिस इंपॉर्टेंट है। ओके तो हर बार क्या होने वाला है, मियोसिस ही होने वाला है। पर याद रखना ये जो मियोसिस होगा ये भी अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मियोसिस किस किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। Meiosis. Okay, so meiosis are of different types. First is zygotic meiosis, gametic meiosis, heterogenic meiosis या sporic meiosis भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है तो अब देखो जाइगोटिक मियोसिस में क्या होने वाला है, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि मियोसिस जो होगा वो कहाँ पर होगा, जाइगोट में होगा। और जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा बेटा, आगे आप साइकिल देखो, जाइगोट एक बनेगा, ओके जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या बनेगा, एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनेगा। ओके अब ये जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल है, दिस इज हैप्लॉइड इंडिविजुअल, दिस विल हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लगभग सिमिलर ही होंगे इस केस में। तो ये जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है ये तो प्रोड्यूस हो गए बाय हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और हैप्लॉइड इंडिविजुअल कैसे बना था बेटा, मियोसिस से। सो जाइगोट में हो रहा है मियोसिस, ओके और मियोसिस के बन रहा है हैप्लॉइड इंडिविजुअल, हैप्लॉइड इंडिविजुअल हैप्लॉइड गैमेट्स को बना रहा है, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स जब आगे जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, these gametes when they will be fused they will form a diploid zygote। ओके और ये जाइगोट में अगेन मियोसिस होगा, फिर एक इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल से हैप्लॉइड गैमेट निकलेंगे, हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट फिर से डिप्लॉइड कंडीशन का फॉर्म हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है, ओके और मियोसिस के बाद इंडिविजुअल क्रिएट हो रहे हैं, गैमेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जाइगोट में मियोसिस अगर हुआ तो इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, फिर वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे और फिर उनका फ्यूजन होगा। सो दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज जाइगोटिक मियोसिस। ये कहाँ पर होता है जनरली, ये आपको हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनस, क्लैमाइडोमोनस में आपको ये देखने मिलेगा, एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। नेक्स्ट इज गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में क्या होने वाला है, आप ह्यूमंस का केस तो जानते हैं, क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, इट इज इन 2n कंडीशन। अब हम इंडिविजुअल से शुरू कर रहे हैं। ओके अब ये जो इंडिविजुअल है ये डिप्लॉइड कंडीशन में है, इसके अंदर जो मियोसाइट होंगे, मेगास्पोर मादर सेल हम प्लांट्स के केसेस में कहते हैं, और जब आप आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन एक्चुअली हो कैसे रहा है। ओके तो अब यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मियोसाइट में मियोसिस होगा और यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे। ओके मेल गैमेट्स अलग, फीमेल गैमेट्स अलग। अब ये जब मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग बन जाएंगे तब क्या होगा, अभी ये किस में हो रहा है, ये इंडिविजुअल के अंदर ही हो रहा है। ओके इंडिविजुअल के अंदर मियोसाइट है और मियोसाइट में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मेल गैमेट अलग से मेल इंडिविजुअल में बनेगा, फीमेल गैमेट अलग से फीमेल इंडिविजुअल में बनेगा। अब ये दोनों पास में आएंगे ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, और कॉप्युलेशन के बाद क्या हो जाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाएगा, जाइगोट। ओके और जाइगोट वापस से डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, इंडिविजुअल को बना लेगा। यानी कि डिफरेंस देख रहे हो दोनों में क्या है, यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है
और मियोसिस के बाद इंडिविजुअल बन रहा है, पर यहाँ पर इंडिविजुअल के अंदर मियोसिस हो रहा है और गैमेट्स बन रहे हैं। इंडिविजुअल इज इन डिप्लॉइड कंडीशन, गैमेट्स कैसे कंडीशन में है, गैमेट्स है हैप्लॉइड कंडीशन के, और जब ये अलग अलग गैमेट्स अलग अलग इंडिविजुअल के थ्रू या सेम इंडिविजुअल के थ्रू भी फर्टिलाइज हो गए तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट वापस से डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर एडल्ट बनेगा, एडल्ट के बाद जब वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा तो फिर से उसमें क्या होगा, ये गैमेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। ओके या रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के पहले ही ये गैमेट्स बनके तैयार हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में तो वो गैमेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके तो ये इस तरीके का आपको जो मियोसिस है वो कहाँ देखने मिलेगा, जनरली एनिमल्स में आपको इस तरीके का देखने मिलता है, हायर एनिमल्स है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर एनिमल्स क्योंकि ऐसी चीजें एग्जैक्टली लोअर एनिमल्स में नहीं होती है। स्पोरिक मियोसिस का सेंस क्या है, सेंस ये है कि जो स्पोरिक मियोसिस है इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, सबसे पहले स्पोरोफाइट में। ओके तो स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड कंडीशन का, स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस और मियोसिस के बाद एन कंडीशन के स्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, ये माइटोटिक डिवीजन दिखाएंगे, माइटोटिक डिवीजन दिखाएंगे और एक गैमेटोफाइट को जनरेट कर लेंगे। क्या होगा, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट किस चीज को जनरेट करेगा, गैमेटोफाइट गैमेट को जनरेट करेगा, पर यहाँ याद रखना माइटोसिस हुआ है तो ये भी एन कंडीशन में है, और क्योंकि ये एन कंडीशन में तो एन गैमेट्स एन कंडीशन के ही गैमेट्स बनाएगा, यानी हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा। अब ये गैमेट्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो वापस से किसको फॉर्म कर लेंगे, एक स्पोरोफाइट को फॉर्म कर लेंगे। स्पोरोफाइट में माइटोसिस होगा और वो एक अडल्ट स्पोरोफाइट बन जाएगा, फिर उस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद स्पोर्स जनरेट होंगे, वो स्पोर्स माइटोसिस दिखा के गैमेटोफाइट बना लेंगे, गैमेटोफाइट में फिर से माइटोसिस होगा और माइटोसिस के थ्रू ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जब अलग अलग गैमेट्स जो है जब फ्यूज हो जाएंगे तब एक और फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा और यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। एंड ये जो स्पोरिक मियोसिस है वो जनरली हमें कहाँ देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है प्लांट्स में, करके जनरली प्लांट्स में यही वाली प्रोसेस होती है। ओके तो हमने क्या देखा, हम पूरा एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो दो इंडिविजुअल्स है अलग अलग अपोजिट सेक्सुअलिटी के, मेल गैमेट बनेगा मेल में, फीमेल गैमेट बनेगा फीमेल में, वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाने के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा और बनेगा एम्ब्रियो। हमने ये देखा अभी तक। तो हमने देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके पहले के जो पीरियड्स हैं उनको हम जो इवेंट्स है उसको हम गिन रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, क्योंकि इवेंट अभी तक फर्टिलाइजेशन का हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट है तो हमने बोल दिया प्री फर्टिलाइजेशन। ओके अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बनने के बाद जितने भी इवेंट्स होंगे वो आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, प्री फर्टिलाइजेशन में नहीं आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने ये देखना पड़ेगा कि गैमेटोजेनेसिस हुआ है ना, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का जेनेसिस होगा तभी तो वो फ्यूज होंगे। तो हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, पर अब हम देख रहे हैं कि वो कैसे होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू होगा, और मियोसिस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस, अलग अलग, राइट। अब ये जो पूरा साइकिल है, ये वाला साइकिल ना आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में पता है, जिसमें आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था। ओके तो आगे जो पिछले वाले आप 11th में आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छे से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। तो जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस का कंसेप्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। तो हम कौन से स्टेज तक पहुंच गए हैं, सेल डिवीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए किस तरीके का सेल डिवीजन होता है, अब हमने ये भी देख लिया, राइट। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि गैमेट तो बन गए, ओके बट गैमेट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर गैमेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो थर्ड इवेंट
In pre-fertilization event will be gamete transfer. So I'm writing here, it is third, number 3, gamete transfer. तो मुझे बताओ, अगर हम ब्रायोफाइटा यानी लोअर प्लांट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में क्या होने वाला है? ब्रायोफाइटा में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है और जनरली जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, राइट? तो क्या होता है ब्रायोफाइटा को, क्या हम बोलते हैं? याद करो, हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट? तो यानी कि जनरली मॉइस्ट एरियाज में ही पाए जाएंगे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो क्या होगा, जो मेल गैमेट्स हैं वो ब्रायोफाइटा से रिलीज हो जाएंगे और क्योंकि वो मोटाइल होते हैं जनरली वो वाटर करंट में आ जाएंगे, वाटर करंट उनको ले करके फीमेल गैमेट तक पहुंचा देगा, या अगर फीमेल गैमेट भी रिलीज हुए तो वाटर करंट में ही रिलीज होंगे और मेल गैमेट जैसे ही फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएगा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन कर लेगा? वापस से ब्रायोफाइलम प्लांट का जनरेशन कर लेगा, है ना? सो दिस इज द केस इन ब्रायोफाइटा। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, तो क्या होगा? फीमेल गैमेट जो है एंड मेल गैमेट जो है इन दोनों को मिलना पड़ेगा। अब इनका मिलना कैसे होता है? इनका मिलना होगा, ये स्ट्रक्चर जानते हैं क्या बनाया मैंने? दिस इज द ओवरी पार्ट, राइट? दिस इज द, अच्छे से बनाते हैं ऐसे, दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, ओके? तो क्या है? पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पर लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद इनसे निकलेगा एक पॉलन ट्यूब और पॉलन ट्यूब के थ्रू इसके न्यूक्लियस जाकर के ओव्यूल के अंदर जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देंगे, है ना? तो अब हायर प्लांट्स में ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? वी आर सेइंग दैट पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, ओके? अभी हम इसको फर्टिलाइजेशन में और अच्छे से देख लेंगे। थर्ड है एनिमल्स, हायर एनिमल्स। तो हायर एनिमल्स में जो गैमेट ट्रांसफर है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, फ्रॉम मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना? डायरेक्ट कॉप्युलेशन के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेल इंडिविजुअल टू फीमेल इंडिविजुअल, राइट? सो दिस इज हाउ अ गैमेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन organism to another organism, or if the organism is bisexual, cross fertilization और self fertilization भी हो सकता है। जब आपने अर्थवर्म पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि अर्थवर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, बट बीइंग बाइसेक्सुअल आल्सो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल भी है तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ओके? तो अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अच्छे से देख लिया है, कैसे गैमेट जनरेट हो रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में डिवीजन कौन सा हो रहा है, डिवीजन के बाद गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिंगैमी। Why it is known as syngamy? Because syn means fusion and gamete means gametes. That is why fusion of gametes is known as syngamy or fertilization. तो fertilization हम अलग अलग तरीके के देखेंगे, यानी हम सिंगैमी के भी टाइप्स देखने वाले हैं और सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन ही, कंफ्यूज मत होना, फर्टिलाइजेशन के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। तो पहला टाइप हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम में हो रहा है? अब मीडियम जो है कहने का सेंस ये है कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसका सेंस क्या होगा? अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, यानी फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी कि मेल गैमेट भी बाहर होंगे, फीमेल गैमेट भी बाहर होंगे और दोनों बाहर मिलकर ही जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट? सो फर्टिलाइजेशन
does not take place inside female body. This type of fertilization is external fertilization. For example, fishes, reptiles, frog, etc. Okay, now in internal fertilization what happens, you know that what happens है ना, direct fertilization हो जाता है, मतलब fertilization take place inside female body. अब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल कॉप्युलेटरी organ transfers male gametes to female reproductive organ where fusion takes place. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फ्यूजन जो है वो फीमेल के अंदर होने वाला है, बॉडी के अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट में. दैट इज व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटर मीडियम में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. ओके, समझ में आया. अब ये तो था एक टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम. अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, टाइप्स ऑफ सिंगैमी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स. तो सिंगैमी के अलग अलग टाइप्स होते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहला देखने वाले हैं आइसोगैमी. आइसोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स विल टेक प्लेस. फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स. अब गैमेट्स सिमिलर स्ट्रक्चरली होंगे, ठीक है, जेनेटिकली नहीं. जेनेटिकली पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होंगे, हम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर की बात कर रहे हैं. So the gametes will be morphologically similar. Okay, and the example of isogamy will be Chlamydomonas, as I told you earlier in the example also. ठीक है? Okay, next will be anisogamy. अब क्लियरली नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसोगैमी में क्या हुआ, सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन हुआ. यहाँ पे होगा फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स. अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होगा जो स्ट्रक्चरली एक जैसे नजर नहीं आएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास क्लैमाइडोमोनस का दूसरा स्पीशी विच इज क्लैमाइडोमोनस ब्राउनी. ओके, तो दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. जस्ट रिमेम्बर द कंसेप्ट, नाम से ही समझ में आ जाएगा. आइसो मतलब सिमिलर, गैमी मतलब गैमेट्स का फ्यूजन, एंड आइसो मतलब एक जैसे गैमेट्स नहीं है उनका फ्यूजन. थर्ड विल बी oogammy. अब oogammy में क्या होगा, फीमेल गैमेट जो रहेगा इट विल बी बिगर इन साइज, कंपैरेटिवली काफी बड़ा रहेगा. हाँ, एंड जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉलर इन साइज. अब इन दो अलग अलग साइज वाले गैमेट्स का फ्यूजन होगा. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है इट इज वेरी बिगर इन साइज, एंड मेल गैमेट विच इज द स्पर्म, दिस इज द स्पर्म. जो स्पर्म होगा वो कंपैरेटिवली इट इज वेरी स्मॉलर इन साइज. अब ये जाके इसे फ्यूज कर देगा तो बन जाएगा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर विच इज ज़ाइगोट. ओके, नाउ लास्ट वन विल बी होलोगैमी. होलोगैमी से भी समझ में आ रहा है, मतलब आप नाम से ही समझ जाओगे, इतना इजी कंसेप्ट है. तो होलोगैमी में क्या होगा, होल, होल समझ में आ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट होल, दिस होल. होल मतलब पूरा, है ना. तो होल ऑर्गेनिज्म acts like gamete and they फ्यूज. मतलब इस तरीके का फ्यूजन हम
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए बोल सकते हैं, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होगा और वही ऑर्गेनिज्म अगर गैमेट के जैसा बिहेव करे और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ्यूज कर जाए, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फ्यूज हो चुका है, उस तरीके के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, होलोगैमी, व्हेन होल ऑर्गेनिज्म एक्ट्स लाइक गैमेट एंड दे फ्यूज। एग्जांपल क्या है हमारे पास इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है यीस्ट। ओके, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसको हम सिंगैमी भी बोल रहे हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है वो मीडियम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वो फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिशेज, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स। ओके, और अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो कैसे होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर में हमने मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ले लिया, या फिर हम हायर प्लांट्स भी ले सकते हैं। हायर प्लांट्स में जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, वापस से हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ, दिस इज स्टाइल and this one is ovary, and this whole together along is the female reproductive part of a plant which is carpel, या फिर इसी को आप पिस्टल भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, जो मेल गैमेट्स है which are pollen grains, these are the pollen grains, right? तो whenever the pollen grains लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, इनके अंदर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और इनके अंदर से एक लेयर बाहर आती है ट्यूब के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पहले से ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये निकलती है पॉलन ग्रेन से, सबसे निकलेगी, हो सकता है और भी ज्यादा पॉलन से निकल जाए, बट जो पॉलन ट्यूब इस तक, यहाँ इस वाले एंड तक पहुंच पाएगी, उसके ही जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग को। ओके, सो यहाँ से मान लो ये पर्टिकुलर जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर का पॉलन ट्यूब निकला और वो कहाँ तक पहुंच गया, ओव्यूल के एंडिंग तक पहुंच गया। तो हमने इसे पहुंचा दिया है ओव्यूल के एंडिंग तक, यहाँ तक ट्यूब आया और इसके अंदर से जो न्यूक्लियस निकल रहा है इस पॉलन ग्रेन के अंदर से, आई एम राइटिंग हियर पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन के अंदर से जो न्यूक्लियस निकल रहा है वो कहाँ तक आएगा, ओव्यूल के एग तक आ जाएगा और यहाँ पे जो एग है उसको फर्टिलाइज करेगा और सेंट्रल न्यूक्लियस को भी फर्टिलाइज करेगा, मिल करके कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर इस वाले में 3n और यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फिर डेवलपमेंट होगा और ओव्यूल के अंदर से ही, ओव्यूल से ही सीड का डेवलपमेंट होगा। ओके, so this is the case with higher plants. So higher plants में भी क्या हो रहा है, pollen grain which is the male gamete is landing on the female reproductive part और उसके बाद उसके न्यूक्लियस जो है वो pollen tube के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक जा रहे हैं, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग सेल तक जा रहे हैं, एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है एक न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होगा, 2 न्यूक्लियस निकलेंगे। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए अभी बता दे रही हूँ, जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो 2 न्यूक्लियस निकलेंगे, एक पॉलन से और एक यहाँ पर प्रेजेंट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा। तो n इज 3n हो जाएगी यहाँ की कंडीशन बीच की और यहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इवेंट इन केस ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और हायर एनिमल्स में कैसे होता है तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। सो टुगेदर ये सारा मिला करके हम इसे फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन देखते हैं, हम देखते हैं कि एन कंडीशन यानी हैप्लॉइड कंडीशन के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज हुए हैं, अलग अलग गैमेट जो है वो फ्यूज हुए हैं और फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है उसे हम बोलेंगे जाइगोट, व्हिच इज 2n इन कंडीशन, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम गैमेट की कंडीशन की बात करेंगे इट इज हैप्लॉइड, ऑलवेज यूनिवर्सली हैप्लॉइड। ओके, और जब हम जाइगोट की बात करेंगे इट इज यूनिवर्सली डिप्लॉइड, ऐसा कोई भी जाइगोट नहीं होगा जो हैप्लॉइड कंडीशन का हो पाए। ओके, हाँ ये अलग बात है कि जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस में, तो वो कंडीशन अलग हो जाएगी। पर याद रखना जाइगोट हमेशा 2n कंडीशन में ही रहेगा।
ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं, और अगर हम बात करें उसके गैमेट्स की तो हम बोलेंगे हमेशा वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, और अगर हम बात करेंगे उसके जाइगोट की या उस इंडिविजुअल के पूरी तो हम बोलेंगे वो डिप्लॉइड कंडीशन में। तो अभी मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और आपको कुछ नंबर्स भी याद रखने होंगे कि कैसे हम गिनेंगे हैप्लॉइड गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर और जाइगोट के कैसे गिनेंगे। ओके तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 1 ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है 2n की कंडीशन में। क्या होता है? 46 होता है 2n की कंडीशन में, यानी इंडिविजुअल के कंडीशन में, एक पूरे ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में वो 2n होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ उसके गैमेट की तो अब 46 बाय हमें 2 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैथ्स आप जानते हैं ना, सिंपल मैथ्स तो आप जानते हैं, 2n इक्वल्स टू 46 है तो n इक्वल्स टू 46 बाई 2 होगा विच इज 23। तो अगर हम n इक्वल टू 23 बोलेंगे तो 2n इक्वल टू 46 बोलेंगे, है ना, क्योंकि हमने 23 पे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया है, और जब हम n का नंबर निकालेंगे तो उसी 2 को 46 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे n का मतलब आप समझो, n मतलब नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ, याद रखना। अब अगर मैं 2n की बात करूंगी तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे डबल। अगर मैं 3n की बात करूं तो नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे ट्रिपल। वैसे ही अगर मैं 10n की बात करूं, वैसे होता नहीं है बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि नंबर ऑफ सेट्स क्रोमोसोमल सेट्स इनटू 10 कर दोगे आप, तो व्हाट इज दिस, n इज नंबर ऑफ सेट्स। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी एक सेट जो है उसमें 7 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2n की कंडीशन में कैसा हो जाएगा, वो 7 इंटू 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू 1 सेट, 2n इक्वल्स टू ट्वाइस द सेट। अब एक सेट में कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं वो डिफर करेंगे, जैसे कि अगर एक सेट में 7 क्रोमोसोम्स हैं तो जब 2n कंडीशन करेंगे तो 7 बाई 2 कर इंटू 2 कर देंगे, राइट, तो 14 क्रोमोसोम्स हमें मिल जाएंगे। वैसे ही हमें अब यहाँ पर देखना है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनके नंबर को डबल करना है। उसमें होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, तो अगर n इक्वल्स टू 23 है तो डबल द नंबर ऑफ सेट में क्या होगा, 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन हैप्लॉइड गैमेट, ह्यूमन के हैप्लॉइड गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23, पर ह्यूमन के डिप्लॉइड जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23 इंटू 2 46, या फिर हम बोलेंगे कि 23 का पेयर रहेगा, है ना, 23 इंटू 2 यानी 23 का पेयर। अब हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं 12। तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर इसका, तो मैं क्या कर दूंगी, 12 बाई 2 कर दूंगी विच इज 6। अगर मैं बात करूं फ्रूट फ्लाई की, फ्रूट फ्लाई में जो नंबर ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स रहते हैं वो रहते हैं 4, सॉरी हैप्लॉइड गैमेट्स रहते हैं 4। अब मैं बात करूं कि जाइगोट की कंडीशन में कैसे गैमेट्स रहेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2n की बात कर रहे हैं, डबल द नंबर ऑफ सेट्स। एक सेट में कितने क्रोमोसोम है, 4। अगर मैं 2n यानी 2 सेट की बात करूंगी तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 8। तो ऐसे ही अगर n की कंडीशन पता है तो 2n आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, अगर 2n की कंडीशन पता है तो आप n की कंडीशन निकाल लोगे डिवाइड करके, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, डॉग, डॉग में कितने डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 78। ओके तो अगर 78 को आप डिवाइड करोगे तो हैप्लॉइड गैमेट में उसके कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 78 बाई 2, तो 2 3 6 एंड 39, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया है आई थिंक। आपके बुक में एनसीईआरटी 12th में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ डिप्लॉइड नंबर भी देखना है आपको और हैप्लॉइड नंबर भी देखना है। कुछ नंबर पहले से इस साइड में फिल है और कुछ साइड में यहाँ पर फिल है। तो अगर आपको हैप्लॉइड कंटेंट पता है तो आप डिप्लॉइड कंटेंट निकाल लोगे, डिप्लॉइड कंटेंट पता है तो आप हैप्लॉइड कंटेंट निकाल लोगे। बहुत इजी बेसिक सा मैथ्स है। ओके तो हमेशा याद रखना कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट्स। ओके अब n है मतलब सिंगल सेट है, 2n मतलब डबल सेट्स है, 3n मतलब ट्रिपल सेट्स है एंड
सो ऑन। ओके, तो बात की हमने किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। इसके पहले हमने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। So what is going to happen in post-fertilization event is that after formation of zygote, the zygote will undergo cell division. कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, याद रखना माइटोसिस. This zygote will undergo many mitotic divisions and second will be cell differentiation, form an embryo. तो सेल डिवीजन में मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होंगे तो मास इंक्रीज होगा सेल्स का पूरा, और जब मास इंक्रीज हो जाएगा तो अलग अलग सेल्स जो होंगे वो अपना अलग अलग काम की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे. मतलब अगर एक सेल है जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को, मतलब कुछ सेल्स हैं जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे. मतलब कि जितना भी मास डिवाइड होकर के बन जाएगा अब उनको अपना अलग अलग काम मिल जाएगा. तो उस तरीके की प्रोसेस को जिसमें कि हमने सेल्स को अपना अलग अलग काम दे दिया है, अब वो अपने अलग अलग काम को ही परफॉर्म करेंगे, एक सिमिलर काम को परफॉर्म नहीं करने वाले हैं. उस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे. तो जब भी एक ज़ाइगोट फॉर्म होगा बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये ज़ाइगोट मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स के अंदर से होके गुजरेगा और सेल डिफरेंशिएशन से होके गुजरेगा, तब जाके एक फंक्शनल एम्ब्रियो फॉर्म होगा. और एम्ब्रियो 9 मंथ बाद, अगर हम ह्यूमन की केस की बात करें तो 9 मंथ बाद फीमेल के यूट्रस से डिलीवर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब और भी क्या होने वाला है, अगर हम बात करें एग लेइंग एनिमल्स की, तो एग लेइंग एनिमल्स को आप क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस एनिमल्स का सेंस होगा कि वो एग ले करेंगे और उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ज़ाइगोटिक डेवलपमेंट आप बोलो डायरेक्ट ज़ाइगोट के फॉर्मेशन के बाद का. सो ज़ाइगोटिक डेवलपमेंट जो होगा वो फीमेल के अंदर नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस इनसाइड मेल बॉडी. फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा. इसका मतलब है कहाँ होगा, अब क्या होगा, जैसे ही ज़ाइगोट फॉर्म हो जाता है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, ये जो है इसको हम ज़ाइगोट बोल रहे हैं. अब वो क्या करेगी, इस ज़ाइगोट को बाहर डिलीवर कर देगी विथ मेनी प्रोटेक्शन अराउंड. यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के साथ इसको डिलीवर कर देगी. और प्रोटेक्शन, अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, 1 मिनट, लेट मी ड्रॉ इट मोर क्लियर. If this is the zygote and this is the protective layer outside and there is some nutritions inside. ठीक है, तो जो ज़ाइगोट है उसके आजू बाजू सराउंडिंग है योक की, और योक के ऊपर कवरिंग है एक कैंसरस शेल की, शेल की. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं जिनका ज़ाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं. यानी कि जब ज़ाइगोट फॉर्म हो जाता है तो उनके अंदर ही ज़ाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होता, वो एग के फॉर्म में ज़ाइगोट को बाहर ले कर देते हैं. ज़ाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है एक फीटस, और वो फीटस डेवलप होकर के बाहर आ जाता है, एग हैच हो जाता है. ओके, तो अब क्या हुआ, ज़ाइगोट को उसने बाहर दे दिया, किसके फॉर्म में, कैल्सरस शेल के फॉर्म में, कि प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग के साथ. और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे अब हम पूरे को मिला के एग बोलेंगे. तो अंदर में ज़ाइगोट है और ये योक से भरा हुआ है ताकि इसका डेवलपमेंट हो पाए, और उसके बाहर क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. इस पूरे को हम एग बोलेंगे, राइट. तो ओविपेरस एनिमल्स क्या करेंगे, इसे बाहर डिलीवर कर देंगे. तो जो बेबी है, जो एग से हैच होने वाला है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाएगा तब, राइट. एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कुछ एग जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और कुछ एग जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते. कहने का सेंस क्या है कि कुछ जो एग होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनका एग के योक का, दिस इज योक, तो उनके एग के योक का कंटेंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो इस पर्टिकुलर ज़ाइगोट को डेवलप कर पाए.
ओके तो डेवलप करने के लिए ये योग सफिशिएंट होता है। तो इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट एग, या फिर इस तरीके के एग को हम बोलेंगे क्लिडोइक एग। ठीक है, ऐसा एग जो सेल्फ सफिशिएंट होगा किसी भी यंग वन एग से जो भी ऑर्गेनिज्म निकलेगा उसके डेवलपमेंट के लिए, उस तरीके के एग को हम क्लिडोइक एग बोलेंगे। पर ऐसे भी बहुत सारे एग्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। अब क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं मतलब उनमें योग का कंटेंट जो होता है काफी कम होता है। अगर योग का कंटेंट कम होगा मतलब अंदर में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप बहुत ज्यादा कम होगा। इस कंडीशन में जो एग से बाहर निकलते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं निकलते, वो निकलते हैं लार्वा, राइट। और लार्वा फिर बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू होके गुजरता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है और उसके बाद लास्ट में जाके एडल्ट फॉर्म को अटेन करता है। उस तरीके के एग को हम क्या बोलेंगे, नॉन सेल्फ सफिशिएंट एग। तो क्लिडोइक एग का एग्जांपल क्या है, हेन के एग्स, है ना, ऑस्ट्रिच के एग्स, मेनली बर्ड्स के जो बर्ड्स होते हैं या फिशेस होते हैं उनके जो एग्स होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट एग्स होंगे। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम बात करते हैं फ्रॉग की, फ्रॉग से जो निकलता है वो लार्वा निकलता है, फिर टैडपोल बनता है, फिर आगे उसका डेवलपमेंट होता है, राइट। हम बात कर सकते हैं कॉकरोच की भी, हालांकि कॉकरोच हायर एनिमल में नहीं आता तो हम उसको नहीं लेते, हम हायर एनिमल की बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ लिजर्ड्स भी होते हैं जिनके एग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं तो फिर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, राइट। तो हमने अभी बात किसकी की, ओविपेरस एनिमल्स की। विविपेरस एनिमल्स क्या होंगे, व्हाट आर विविपेरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स which directly give birth to young one, directly give birth to young one, इस तरीके के एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ह्यूमंस इन एवरी केस, है ना, ह्यूमंस बोल लो और लायन बोल लो, टाइगर बोल लो, हायर एनिमल्स जितने भी बोल लो उनकी हम बात करें तो वो विविपेरस होते हैं, कैंगरू बोल लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब ये तो बात की हमने एनिमल्स के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में, राइट। सो व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में डेवलपमेंट कैसा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगा, फिर ओव्यूल के अंदर तक जाके जो एग सेल है उसको फर्टिलाइज कर देगा। तो क्या होगा, जब एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल से ही क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे बनेगा जाइगोट, ठीक है। एंड ओव्यूल से क्या बनेगा, उससे बनेगा सीड। और ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी क्या करेगी, बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देगी विच इज ऑल्सो एडिबल। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बाहर का जो कवरिंग होता है वो पूरा फ्लैशी और एडिबल होता है, जैसे एप्पल बोल लो, मैंगो बोल लो। जो पेरिकार्प है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी है, हम उसे खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी गेन करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अंदर में एक जाइगोट है that is covered by a seed or seed is covered by a fleshy pulp, so this will be zygote, this will be ovule and this will be ovary which has developed into pericarp, pericarp। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, एंड ओवरी से क्या बन जाएगा, पेरिकार्प। तो आपको ये याद रखना है कि फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाएगा जाइगोट में, ओव्यूल से बन जाएगा सीड और ओवरी से बन जाएगा पेरिकार्प। अब ये जो ओव्यूल डेवलप हुआ है ये अलग अलग फॉर्म में डेवलप हो सकता है, मतलब इसके जो डिजाइन्स में एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो, या फिर मैं बोलूँ प्रेजेंटेशन करेक्टली, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में ही कि ओव्यूल के लगने के अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ना। तो वो पैटर्न्स कौन कौन से हो सकते हैं, ओव्यूल पैटर्न्स या फिर प्रेजेंटेशन, वो अलग अलग हो सकते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ लिया है, हम जस्ट एक बार नेम रिवाइज कर रहे हैं। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हो सकता है, दूसरा पैराइटल हो सकता है ना,
तीसरा ओके क्योंकि प्रेजेंटेशन वी हैव रेड अर्लियर राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब हमने सारा का सारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया है जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के बाद आगे क्या होता है थोड़ा बहुत हम जैसे कि प्लांट्स का केस देख रहे हैं, और एनिमल्स का भी हमने ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स का केस देखा। व्हाट हैपेंस वी हैव सीन अप टिल नाउ इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट व्हाट हैपेंस to a zygote when it is formed and it comes in post fertilization event right। एक छोटा सा हेडिंग है, एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना अगर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो उस तरीके के प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले तो बनाना है हमारे पास प्लांट के एग्जाम्पल में, और अगर हम एनिमल्स का एग्जाम्पल ले तो बीज है, हनी बीज आपको पता होगा, ड्रोन्स होते हैं उसमें है ना, ओके तो बीज का एग्जाम्पल है हनी बीज। और हमारे पास कुछ लिजर्ड्स का एग्जाम्पल है जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही डेवलप होते हैं, मतलब उनका होल स्पीशी जो अराइज होता है वो थ्रू पार्थेनोजेनेसिस ही होता है। ओके सो I hope you have understood every aspect of sexual reproduction in organism। हमने क्या देखा, हमने देखा लाइफ साइकिल, हमने देखा डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, एंड हमने लास्ट में देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग पूरे अच्छे से सारे पॉइंट्स के साथ कवर कर ली है। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो उसको भी कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं, या फिर हाँ कमेंट करते रहे मुझे बताने के लिए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ताकि आपको समझ में आए कि लॉजिक कैसे लगाना है और आंसर कैसे निकालना है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप सेफ, बी सेफ एट होम एंड हैव अ नाइस डे।